Hello everyone. What's up? मैं हूँ सृष्टि सौम्या and I welcome you to HEC Presents the Teachers Talk Show. Limited seats, unlimited dreams. I hope you all must be doing very good and wishing all the lovely, handsome, charming teachers very happy Teachers Day. Well, guess what? Today with us we have a very special guest. She is a teacher, a pedagogue, educator, and whatnot. I must say she must be a magician because whenever she enters into the classroom lighten up with knowledge and आज हमारे साथ एक वो ऐसी शख्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो रियल लाइफ चांदनी है. Without any further ado, I welcome our very special, sweet, and sincere guest, Mr. Spreet Kaur. Thank you so much, ma'am, for being with us today. First of all, I would like to thank your team for considering me for this interview. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. So, before we dive into the question answer or the interview or the talk session, जनरली हम देखते हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों से सवाल कर रहे या उनसे कुछ बातें पूछ रहे होते हैं बट यहाँ पे थोड़ी रिवर्स साइक्लिंग हो रही है. A teacher is actually would be answering some questions to the interviewer maybe. So how do you feel about that? Actually, this happens with me often. I'm very friendly to my students. So class में जब मैं जाती हूँ and sometimes like I have more than 2 lectures. They get tired and they feel like मैम अब नहीं पढ़ना. अब थोड़ा सा discussion करते हैं. So they often keep questioning about my life and when I used to study everything. So I'm habitual of all this. Lovely. So, ma'am, could you please introduce a little about yourself और आप अपने background के बारे में अगर बताओ, what inspired you to pursue a career in education or how long you have been teaching? For how long? Yes. I'm Jaspreet Kaur, presently working at Campus School Pantnagar as PGT Chemistry. Talking about my educational qualification, I've done MSc Chemistry from GD Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. I hold a B.Ed degree as well. Into this profession, it's around like 13 years. For the last 13 years, I've been working as a teacher. If I talk about what inspired me to pursue my this, so I would say it was my own life story. When I was a student, actually we had financial issues and I was an average student. तो क्लास में जाकर क्या होता था मुझे एक बार में समझ नहीं आता. You could say I was a slow learner. अब टीचर ने पढ़ा, टीचर्स आर गुड नो डाउट, तो वो आके पढ़ाते थे, बट आई कुड नॉट मैच टू दैट लेवल. तो मुझे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती थी. सेकेंडली लाइक एट माई होम देयर वाज नोबडी एजुकेटेड. एजुकेशन सबकी बहुत ही कम थी. अब घर पे कोई पढ़ा नहीं सकता, क्लास में कुछ समझ में आता नहीं था. आई कुड नॉट अफोर्ड ट्यूशंस ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज. तो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी. तो देयरफॉर कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज हुआ कि टीचर्स वो होने चाहिए, दे शुड बी मैजिशियंस, जो खुद ही समझ जाए कि सामने वाला जो स्टूडेंट है वो हमें समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है. आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट. इतना ज्यादा था कि आई कुड नॉट आस्क अ सिंगल डाउट टू माई टीचर्स. भी नहीं पूछा. उसमें यही डर लगता था कि वो डांट देंगे तो क्या होगा, और व्हाट अदर्स माइट बी थिंकिंग कि इतने सिंपल बेसिक क्वेश्चंस इसको नहीं आते हैं. तो जो डर था, हेजिटेशन थी, आई नेवर टॉक टू माय टीचर्स फ्री. तो वो जो एक इमेज थी टीचर्स वाली, लाइक दे आर गॉड्स, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है. मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं. तो वहां कहीं आई रियलाइज कि इन फ्यूचर मुझे एक ऐसा टीचर बनना चाहिए who must be very close to the students, और शायद मैं कहीं समझ पाऊँ स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को, what is going on into their minds. तो यही था जिसने मुझे टीचिंग की. और एक और बताती हूँ, कुछ पर्सनल है उसमें. लाइक माय फैमिली वाज ऑर्थोडॉक्स थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ फीमेल एजुकेशन पर ध्यान नहीं. एवरीबडी वाज अगेंस्ट दैट. 12th हो गई या मैक्सिमम ग्रेजुएशन हो गई, दैट्स आगे पढ़ना ही नहीं है. बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, बहुत रोना पड़ा उसके लिए, बहुत झगड़ा करना पड़ा. एंड दैट वाज व्हेन आई वाज एबल टू कंप्लीट माय पोस्ट ग्रेजुएशन. अब जब उसके बाद जॉब की बात आई तो आई हैड जस्ट वन ऑप्शन. माय पेरेंट्स वर लाइक, बेटा आइदर गोइंग टू टीचिंग, कहीं और आपको जॉब करनी ही नहीं. देयर इज नो सिक्योरिटी आउटसाइड, और तुम इतनी सीधी सादी हो, कोई भी बेवकूफ बना जाएगा, तो वी वोंट अलाउ यू. तो वो एक कहते हैं ना, मरता क्या ना करता. देयर वाज नो ऑप्शन. एक बार और बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ हुआ. somebody asked me, are you a teacher by chance or by choice?
तो आई कुड नॉट आंसर टू दिस क्वेश्चन एट दैट मोमेंट, मुझे समझ ही नहीं आया। तो क्वेश्चन होने के बाद मैंने सोचा एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए। देन आई रियलाइज कि इन द बिगनिंग आई वाज कुछ ऑप्शन ही नहीं था। इट वाज नॉट माय चॉइस टू बी इनटू दिस प्रोफेशन। बट हाँ, स्लोली टीचिंग में आने के बाद वेरी सून आई रियलाइज कि दिस इज वेयर आई एम मेंट टू बी। टीचिंग इज फॉर मी एंड आई एम फॉर दिस प्रोफेशन। तो बहुत जल्दी समझ में आ गया कि दिस इज माय चॉइस एक्चुअली। Wow, ma'am, you answered this so amazingly. तो जैसा आपने बताया कि आप एज़ अ टीचर होने की परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, यू डोंट वांट कि जो अगले जनरेशन के बच्चे हों वो उन प्रॉब्लम्स को कभी फेस करें फ्यूचर में। तो डू यू थिंक दैट यू हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग मेथोडोलॉजी व्हिच यू यूज़, जो कि जब आप स्टूडेंट थे शायद उस वक़्त नहीं यूज़ होती थी, पर अब आप वो चीज़ इनकलकेट करते हो अपनी टीचिंग हैबिट में, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो भी उनकी स्पेसिफिक एकेडमिक ग्रोथ हो या कोई पर्टिकुलर गोल हो वो उनको मीट कर सकें? सी एग्जैक्टली ऐसा बहुत कुछ स्पेशल भी नहीं करती, बट यस आई ट्राई माई बेस्ट, जितना कर पाऊँ मैं कोशिश करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्टली आई एम वेरी वेरी फ्रेंडली विद देम। वो जो एक गैप होता है ना बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, मैंने उसको बहुत मिनिमाइज कर दिया है। माई स्टूडेंट्स आर वेरी फ्री। तो टीचिंग के अलावा वट एवर प्रॉब्लम्स दे हैव इन देयर लाइफ, जो भी हो वो, दे आर ऑलवेज फ्री टू कम एंड डिस्कस विद मी। दो मैंने साइकोलॉजी पढ़ा नहीं है एज अ सब्जेक्ट, बट यस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। तो बहुत अच्छे से हम लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद सेकेंडली एक जो मेरे टाइम पे मुझे प्रॉब्लम आई थी, आवर टीचर्स यूज्ड टू ट्रीट एवरीबॉडी इन द सेम वे। उनके लिए एक क्लास है, ऑल द स्टूडेंट्स वर द सेम, देयर मेथड्स वर द सेम। तो मेरा मेथड थोड़ा सा अलग है। जो लाइक टॉपर्स हैं, आई नो दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज विद देम, तो उन पे मेरा ध्यान थोड़ा सा कम रहता है। आई मेनली फोकस ऑन द अदर क्लास, जो मेजोरिटी है, जो मीडियोकर्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं या बिलो एवरेज वाले हैं, दोज हू डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, या फिर जिनको इंटरेस्ट भी है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन पे मैं स्पेशल ध्यान देती हूँ। सेकेंडली आई यूज अ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, मैं क्लास में फेमस हूँ किसके वेरी लिए? इंपॉर्टेंट। टू गिव एग्जाम्पल्स, मैं ऑन द स्पॉट एग्जाम्पल्स क्रिएट करती हूँ रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। कई सॉन्ग्स निकल के आ जाते हैं जो मेरे सब्जेक्ट से, मेरे टॉपिक से रिलेट हो जाते हैं ऑन द स्पॉट। कई ऐसे एग्जाम्पल्स, कई ऐसी टर्म्स निकल के आती हैं, कभी दोस्ती हो गई, कभी कुछ हो गया। तो लाइक एग्जाम्पल्स जो है डे टू डे लाइफ वाले, तो वो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ, जिससे जो भी टॉपिक है वो स्टूडेंट को थ्रू आउट द लाइफ याद रहे। ओके। एंड एक और चीज मैंने अभी रिसेंटली की, लाइक अब हम हर एक सेक्शन को नहीं पढ़ा सकते, स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते स्कूल में। सेकेंडली क्लास में हम गए, एक टॉपिक, वी हैव अ लिमिटेड टाइम। अब स्टूडेंट को डाउट होता है और सिलेबस इतना वाइड होता है कि बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते। तो रिसेंटली आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। तो सो दैट इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस आई मीन अवेलेबल नहीं है, जिनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली फॉर देम। तो जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो वहीं मुझसे पूछ लेते हैं थ्रू देयर कमेंट्स, और वहीं इट इज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। सिंपल लैंग्वेज यूज की जाती है। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय स्टूडेंट्स। दिस वाज द ओनली द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैड कि अ, हर एक टीचर का एक अलग अप्रोच होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की कुछ अलग डिमांड होती है, एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, एवरीबॉडी इज नॉट ऑन द सेम पेज। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप हर एक बच्चे को एक अलग लेवल पे ट्रीट सेड ना, मैं क्या सोचती थी बचपन में, टीचर्स को अंतर्यामी होना चाहिए। तो द क्वेश्चन दैट यू आर अबाउट टू आस्क आई ऑलरेडी आंसर। यस यस यस। जैसा आपने बताया कि आप एक ऐसे फैमिली से आते थे जहाँ पे थोड़ी मतलब हाई एजुकेशन को लेके आपकी परेशानी हुई। तो एज समवन हु इज डीपली इन्वॉल्व्ड इन द एकेडमिक ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू बिलीव हायर एजुकेशन इज इन टुडेज वर्ल्ड? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपको क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी, आज की जो हमारी लाइफ है, जो वर्ल्ड है, यहाँ ना सरवाइव कर पाना हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं। इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, इफ यू आर नॉट गुड पोजीशन, इफ यू आर नॉट अर्निंग वेल, तो वहां सरवाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हमारे टाइम पे क्या थे, हम लोग मिनिमम में भी खुश रह लेते थे। अभी वाली जो जनरेशन है, कम में तो गुजारा है ही नहीं उनका। एक्सपेंसेस बहुत हैं, उन्हें शो ऑफ भी करना है, सोसाइटी के लेवल पे चलना है। तो जब पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली यू नीड टू बी एट दैट लेवल। अब कुछ कमाने के लिए, कुछ तो देखो बहुत लकी होते हैं, मेहनत नहीं भी करते तो पैसा खुद ही उनके पास आ जाता है।
मेजोरिटी ऐसी नहीं है, लकी वंस आर रेयर। तो मैक्सिमम जो है उनको मेहनत करनी है, तो उसके लिए द बेस्ट टूल इज नॉलेज। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे। तो लकी लोगों के अलावा जो others बाकी लोग हैं, दे हैव टू बी इनटू एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन होगी तो ही वो अपना फ्यूचर अच्छा कर पाएंगे। राइट, राइट। मैम, जैसा आपने बताया कि यू हैव दिस यूट्यूब पेज ऑफ योर्स जहाँ पे आप लेक्चर्स लेते हो या फिर जो भी आप अपनी तरफ से नॉलेज शेयर करना चाहते हो बच्चों को, तो मुश्किल होता है कि आपको लगता है डिस्पाइट योर क्लासेस विच यू टेक और यू मस्ट बी हैविंग अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो, तो ऐसा लगता है कि टीचर होना थोड़ा मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर प्रोफेशनली भी चीज़ें मैनेज करनी है, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, पर्सनल लाइफ भी होगी, सो हाउ डू यू टैकल ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इज इट रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आप 13 years से इस प्रोफेशन में हो, अच्छा लगता है करना या फिर कभी कभी परेशानी भी आती है? सी टीचिंग या कोई भी प्रोफेशन तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक आप उससे अटैच नहीं हो, आपको वो प्रोफेशन पसंद नहीं है। बट इफ यू आर इन लव विद योर प्रोफेशन, आप डे एंड नाइट पढ़ा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिकॉज यू आर इन लव विद दैट। प्यार के लिए तो कुछ भी जायज है, ठीक है। तो यस, आई टू गेट टायर्ड, आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल। मॉर्निंग जल्दी उठना होता है, आई हैव माय किड्स एज वेल, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे दो, उनको भी देखना है, उनकी स्कूलिंग चल रही है, उनको रेडी करके भेजना, प्लस फिर अपनी जॉब पर जाना, घर आके फिर फैमिली है, बच्चे हैं, मार्केट देखनी है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आई एम लकी, आई हैव अ सपोर्टिंग फैमिली। तो आई हैव अ जॉइंट फैमिली, माय इन लॉज आर देयर। तो वो पूरा सपोर्ट देते हैं, जब बच्चों को वो हैंडल कर लेते हैं तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, ये चैनल के लिए वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आई रेयरली गेट टाइम फॉर दैट। बहुत मुश्किल होता है, कभी ऑफ है तो बच्चे भी घर पे होते हैं, दे डू नॉट अलाउ मी, दे वांट मी टू प्ले विद देम। तो जनरली ऐसा होता है कि नाइट में उनको सुलाने के बाद व्हेन दे स्लीप, फिर मैं ऊपर एक अलग से रूम है, वहां आती हूँ और जितना मेरे से हो पाता है आई डू इट। प्रॉब्लम आती है बट स्टिल आई लव माय प्रोफेशन। करेक्ट, करेक्ट। अपने जॉब से प्यार होना बहुत जरूरी है। तो इवन आई फील दिस दैट अ टीचर इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में, या इनफैक्ट अगर आपके किड्स भी हैं तो आप कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेटर उनको समझ पाते हो क्योंकि आप ज़्यादा बच्चों से मिलते हो। तो डू यू थिंक आपके पास ऐसी कोई ऐसी पर्सनल एक्सपीरियंस है या स्टोरी जिसमें आपको लगता है कि किसी ऐसी पर्टिकुलर टीचर ने आपको बहुत इंस्पायर किया हो या आपको मोटिवेट किया हो, या फिर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनके लाइफ में यू आर एन इंस्पिरेशन और अ मोटिवेशन फॉर देम कि यस मैम ने ये सिखाया है, मैम बिकॉज ऑफ यू दे हैव इवॉल्व्ड एज अ स्टूडेंट और एज अ पर्सन, समथिंग, एनी एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? तो दोनों टाइप की स्टोरीज हैं मेरे पास। लाइक आई टोल्ड यू ना, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी पढ़ने में। तो देयर वर स्पेशली टू टीचर्स, वन वाज माय प्रिंसिपल सिस्टर लिजी, एंड सेकंड वाज अ टीचर हु मेट मी ऑन द वे। मैं स्कूल से घर जाती थी तो शी कॉल्ड मी सम डे कि बेटा इधर आओ, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास आ जाया करो पढ़ने, मतलब विदाउट नोइंग ईच अदर, शी ऑल ऑफ अ सडन कॉल्ड मी। तो ये जो दो लोग हैं, सिस्टर लिजी एंड मिसेस मधुमिता सिन्हा, they have inspired me in whatever I am today. A major part, a major role has been. Talking about my students, अब होंगे तो बहुत सारे, सी आई डोंट नो, कुछ लोग आपसे शेयर कर लेते हैं, बट वी आर नॉट इन टच विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बस ये, बट यस, आई डू हैव अ स्टूडेंट, नवजोत कौर। When I started my teaching, I was at a very young age. Graduation कर रही थी, तो ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, ट्यूशंस वगैरह में। तो वहाँ एक स्टूडेंट आती थी मेरे पास, नवजोत। कुछ दिन तो मैंने उसको पढ़ाया, बट सून शी लॉस्ट हर फादर। अब वहाँ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, तो वन डे हर मदर टोल्ड मी कि मैम हम इसकी ना ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा कम कर दो। आई वाज लाइक ठीक है, आपको जितना पे करना आप पे करो, मैं उसको जीरो नहीं करूंगी, बिकॉज वो फ्री वाला जो केस है ना वो ठीक नहीं है। तो वट एवर यू फील लाइक, मे बी ₹50, ₹100, जितना भी आप अफोर्ड कर सको, यू पे फॉर दैट। तो होता रहा, फिर सून शी ऑल्सो लॉस्ट हर मदर। अब तो घर में कोई अर्निंग सोर्स था ही नहीं, तो आई वॉज इन कॉन्टेक्ट विद हर कंटिन्यूसली, तो थोड़ा सा मैंने उसकी एजुकेशन में हेल्प करी। नाउ शी वॉज सो इंस्पायर्ड, ठीक है, व्हाट शी थॉट वाज कि जो मैम ने किया मुझे करना है। तो आई वॉज एमएससी इन केमिस्ट्री, दैट डे शी डिसाइडेड कि शी इज माय रोल मॉडल, माय टीचर इज माय रोल मॉडल, मुझे भी एमएससी केमिस्ट्री करना है। शी वेंट टू दैट वे। फिर बाद में उसने पूछा जब एमएससी हो गई कि मैम आपने उसके बाद क्या किया। ऐसे बेटा मैंने तो बीएड की थी। ठीक है मैम, मैं भी बीएड करूंगी। उसने बीएड करी,
के साथ में मैम फिर आप अर्न कैसे करते थे? आपके तो सेड बेटा आई वाज इनटू टीचिंग, आपको पता ही है। शी सेड ओके आई बी जॉइनिंग सम स्कूल। उसने भी टीचिंग में ज्वाइन कर लिया एक स्कूल, तो वो भी अपना अर्न करती थी। स्लोली बीएड किया, नाउ स्टिल शी इज इनटू टीचिंग। तो मतलब समटाइम्स आई फील रियली लकी कि हाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं फॉर हुम वी आर द रोल मॉडल्स। तो यही इंस्पिरेशन होता है टीचर्स के लिए। दैट इज सो लवली। ऐसे कोई एक इंसान लाइफ में होना जिसको यू लुक अप टू रोल मॉडल, एंड बीइंग दैट रोल मॉडल फॉर समवन इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, आई मस्ट से। बट ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मैं लाइफ में ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, एंड यू नो व्हेनेवर इवन आई हैव माय फ्रेंड्स जब हम स्कूल जाते हैं, बिकॉज वी आर इन कॉलेज राइट नाउ, तो वो ऐसे थोड़ा घबराते हैं कि नहीं मैं टीचर के स्कूल के टीचर के पास नहीं जाना चाहता, तो मैंने अभी कुछ अचीव नहीं किया है। मे बी समडे व्हेन आई विल बी एट अ बेटर प्लेस इन लाइफ देन आई कैन गो एंड टॉक टू देम। उनके अंदर ये एक ऐसी फीलिंग रहती है कि मतलब मैंने कुछ अच्छा नहीं करा है, आई एम नॉट वर्थ इट, simply due to the education system or lack of seats in good universities. Do you think that आज के एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पर लिमिटेड सीट्स बहुत कम है, एंड कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का अगर हम देखें किसी से भी पूछें व्हाट डू यू वांट टू बी, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, मे बी आईएएस और आईपीएस और बैंक पीओ, तो ऑप्शंस तो सिर्फ इतने नहीं हैं, ऑप्शंस और भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्पेसिफिकली आईआईटी की बात करें, हमने कुछ ऐसी डेटा भी कलेक्ट किया था, which are facts, which are not just raw data। अराउंड 2 to 3 lakhs बच्चे आईआईटी में बैठते हैं और सीट सिर्फ और सिर्फ 18,000 to 19,000 है। तो जो रेशियो है सिलेक्शन का वो काफ़ी कम है। नीट में भी हम देखते हैं 20 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं पर सिलेक्ट 1 लाख ही होते हैं। तो अराउंड 90 to 99% जो बच्चे हैं उनको रिजेक्शन तो झेलना ही पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत खराब हो जाता है। ड्यू ग्लोबल एजुकेशन जो होती है मे बी अराउंड द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटीज हैं, एज अ टीचर डू यू थिंक दैट आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज बच्चों को देना चाहिए, despite being confined in this boundary of competitions, we should explore more, think of studying globally or maybe around the world in university? क्योंकि ये कल्चर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम है इंडिया में स्पेसिफिकली। यसली यस। अब मैं अपनी ही बात अगर करूँ तो मेरे पास तो घर से बाहर जाने का ही ऑप्शन नहीं था। लाइक दीज डेज थिंग्स हैव चेंज्ड। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं और ऐसे भी विलिंग और मेहनत भी कर रहे हैं उसके लिए। तो बाहर जाना ऑब्वियसली यस इज गुड, दो यहाँ इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बट वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन ऑब्वियसली सीट्स। तो बाहर जाके अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है स्टूडेंट्स मस्ट डेफिनेटली गो फॉर इट। और जाएंगे तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। एवरी कंट्री एवरी प्लेस हैज समथिंग टू ऑफर। कुछ यहाँ से सिमिलर भी होगा, कुछ अलग भी होगा, तो कुछ तो आपको मिलेगा। और अपने हिस्से का अपने हक का तो सबको मिलना ही है। बट वी हैव टू, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर रह के आपको सब मिलेगा। तो वी हैव टू एक्सप्लोर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद यस कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा। क्योंकि जनरली हम भी ये चीज़ देखते हैं कि जो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया rather देन द थ्योरेटिकल नॉलेज, बट इन आवर एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा वेटेज होती है उसकी rather देन द प्रैक्टिकल पार्ट। मेमोरी रट्टाफिकेशन, बेटा इसको रट लो, इसको पढ़ लो, समझ में नहीं आ रहा तो Yes, डांस yes. दीज आर थिंग्स इवन वी से। अब वो सिस्टम ही ऐसा है कि वी आर बाउंड टू डू दैट। करेक्ट करेक्ट। इवन इवन मैं अगर अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊँ, मैंने भी 12th में आई वाज अ बायोलॉजी स्टूडेंट। बचपन से कहीं न कहीं वो माइंड में इनकलकेट भी कर दिया गया था कि अच्छा आगे नीट करना है, डॉक्टर बनना है। तो इवन इफ मतलब मैंने कभी खुद से ये चीज़ सोची नहीं थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर मुझे लगता था कि हाँ, सब चाहते हैं तो शायद मेरा भी ड्रीम यही है कि मुझे डॉक्टर। मैंने भी अटेम्प्ट किया, wasn't able to make it. I took a drop also, again wasn't able to make it. फिर मैं आ गई दूसरे फील्ड में, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। सो आई थिंक कहीं न कहीं पेरेंट्स के पास ऑल्दो दे जस्ट विश द बेस्ट फॉर यू, पर उनको डे टू डे की चीज़ें नहीं पता होती कि ग्लोबली भी हम किसी चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर, या ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम बेटर। उनको लगता है कि बच्चा पास में ही रहे तो अच्छा है, दूर नहीं भेजना चाहते हैं जनरली, लड़कियों को तो खास करके।
मुझे लगता है कहीं न कहीं टीचर्स को भी थोड़ा अपडेटेड रहना चाहिए, बच्चों को इनकलकेट करते रहना चाहिए कि ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम भी है, डोंट गेट अफ्रेड, अगर लिमिटेड सीट्स भी हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ परस्यू करनी है, अपने बाउंड्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। Ma'am, do you think that teachers need to be updated with the global education system and the opportunity to guide the students in a better way? ऑब्वियसली यस, जो स्टूडेंट्स का एक ट्रस्ट होता है टीचर्स पे, उसका लेवल बहुत हाई होता है। इवन हम बच्चों को अगर देखें द प्राइमरी से, टीचर ने जो कह दिया दैट इज द थिंग दे हैव टू डू। मतलब उसके अगेंस्ट अगर पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि बेटा नहीं, ये मैम ने गलत बोला है, तो वो पेरेंट्स से लड़ जाते हैं, मम्मा आप गलत हो, correct. माई किड्स की नहीं नहीं मम्मा, मैम ने ऐसा बोला है तो ऐसा ही करना और यही ठीक है। तो स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है टीचर्स पे, अब वो ट्रस्ट करते हैं तो टीचर्स हैव टू गाइड देम। अब टीचर्स Right. तभी गाइड कर पाएंगे कि व्हेन दे हैव द नॉलेज। अब वो ट्रेडिशनल हैं, उनकी खुद की ग्रोथ नहीं हुई है, उन्हें पता ही नहीं है कि आगे क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो क्या बताएंगे अपने स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स भी क्या ही करेंगे। अब टीचर की नॉलेज ही लिमिटेड होगी तो वो उसी लिमिटेड एरिया में स्टूडेंट को रखेंगे। टीचर्स यस नीड टू बी अपडेटेड, इफ दे आर अपडेटेड तो वो उतना वाइड करते जाएंगे एरिया अपने स्टूडेंट्स के। राइट, इवन ऐसा भी होता है ना कि अगर आप ग्लोबली पढ़ रहे हो किसी भी चीज़ को, तो जो आपकी ग्रोथ है वो काफ़ी डाइवर्स होती है, चाहे वो एकेडमिकली भी हो या प्रोफेशनली भी हो। सो आई थिंक थोड़े ऐसे मतलब हेवी क्वेश्चंस हो गए, सो वी मस्ट हैव अ लिटिल लाइटर सेक्शन। तो हमने आपके लिए कुछ ऐसे आपने जेन ज़ी स्लैंग सुने होंगे आजकल के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, दे यूज़ दिस शॉर्टकट, उसमें एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं बात करने के लिए। या सो मे बी लेट्स हैव सम फन। मैं आपसे कुछ एब्रिविएशंस पूछूंगी, आप बताना कि आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा। Okay. So what do you think student mean when they say something is lit? LIT, lit. ये मैंने सुना है, दे ऑफन use this in class. Something is like something is special, maybe something is important. Something which is amazing. If I have to say that this session was amazing, I would say the session was lit. So you're on point. Okay, let's have the next one. Have you heard this term of ghosting? What do you think it refers to? Ghosting. Ghosting, तो I have not heard. Maybe related to the appearance of a ghost, dressing of a No. ghost, maybe. Ghosting is something like having no communication without any information. Say, for example, if I just abruptly cut this call, so you can say that I have ghosted you. अचानक से communication बिल्कुल break कर दिया. Okay. Okay, let's So move on to the next one. Yes. Yeah. Yeah, okay, let's have one more. Any idea you have that this Gen Z slang no cap means in the context of conversations? No cap. Or maybe Nothing cap. hidden. Nothing hidden, like. Nothing hidden. Like you are close. Cap means lying. And if you're not lying, you will say, okay, there's no cap into this information. I'm not. Okay, great. Let's move to the last one. What would it mean if someone is being called a sus? If I say that I find a little sus. Suspicious, maybe. Suspicious. Yeah, you are quite acquainted with the abbreviation. It is suspicious, I've right? heard of most of the terms. Before wrapping up, do you want to give any particular message to your students or students worldwide? Teachers Day. Nothing much, but yes, I would like to say some of the things. First is trust yourself, trust your family, trust God. Secondly, do not wait for future. Must have an aim in life so that you may work over it. अब क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, उन्हें पता ही नहीं होता लाइफ में करना क्या है। तो यू मस्ट हैव एन एम, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी एट द एंड। अगर यू आर हैप्पी, दैट इज द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट। So you must have an aim in life. And thirdly, trust your teachers. They are the ones who would be the most happy when you become successful. Correct. Never hurt your teacher. Your teachers, it's your love. That is the appreciation. Yeah. Even I think the students should not get disheartened because of if they want anything
to achieve in life or they're unable to do so. So there are so many options worldwide. Even in our organization at HEC Education Center, we talk to students and we motivate them that have a trust in yourself. We are there for you. Career counseling is a thing which is actually Your real. voice is breaking. Your voice is breaking. I couldn't hear the question. Okay. I'll just repeat. I was just saying that this is very correct to say that the student should have confidence in them that I want to achieve this particular thing in life. If not in your country, maybe in some other country, maybe in something better which your country can offer. In our organization, we have this belief of counseling the students in a way that they do not get demotivated. Okay, I didn't get a seat. That's the end of my life. Because students often think in a way that limited number of seats है तो अगर मुझे एक सीट नहीं मिली then where will I go? What will I do? Where will I land up? So I think career counseling is a real thing जो कि हमें स्टूडेंट्स के बीच में इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि किसी एक एग्जाम से अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हो दैट डजंट क्वेश्चन योर केपेबिलिटी। बहुत ज़्यादा केपेबल होगे शायद, कहीं और पे हो, कहीं और होगे। तो हमारी अभी जो ऑर्गेनाइजेशन हम इसी पे फोकस करते हैं कि आप ग्लोबली चीज़ें एक्सप्लोर करें। आपके आपके पास हो सकता है आगे बहुत अच्छे ऑप्शंस होंगे, बहुत बेटर आपको एनवायरनमेंट मिल सकता है बाहर जाके। सो आई थिंक दिस वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू कि बच्चों को खुद पे विश्वास होना चाहिए, टीचर्स पे विश्वास होना चाहिए एंड हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड आई थिंक थिंग्स विल एंड अप वेल। Exactly. Anything else, ma'am, you would like to add from your end? No, that is it. Actually, I need to go right now. Thank you so My much kid for is crying. it's completely fine. Thank you so much and happy Teachers Day to you. It was lovely talking to you. Thank you so much.